Hello students. So today we are going to discuss about the different techniques of scientific management. As you know, we are discussing the chapter 2 principles of management nowadays, and we already discussed that why principles are important, what is the significance of principles of management, and about the great management theorist F.W. Taylor and Henry Fayol. In the previous session, we discussed about the 4 principles given by Taylor. Now, in today's session, we are discussing about the different techniques of scientific management which are prescribed by Taylor. Taylor identified basically 7 techniques of scientific management, and that 7 techniques are categorized in work study techniques and non-work study techniques. The work study techniques can further be categorized in 4, that out of 7, time study, motion study, fatigue study and method study, these 4 techniques comes under the category of work study, and the remaining 3, functional foremanship, standardization and simplification of work, differential piece wage rate system, these are non-work study techniques. Basically, the work study techniques analyze the work while it has been performing. At the time of performing the work, the analysis of that work is to be done, then the final outcome is prepared, and on the basis of final outcome, on the basis of the result which is derived from the analysis, these non-work study techniques are established. How the foremanship is divided on different functions, how the standardization and simplification of work is to be done on the basis of time study, motion study, fatigue study and method study, and on that basis we differentiate between the efficient and non-efficient worker, and we establishes the differential piece wage rate system. So these 2 techniques, these 2 categorization are complementary, are related to each other. हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, बिकॉज नॉन वर्क स्टडी टेक्निक्स के रिजल्ट्स के बेसिस पे हम ये स्टडी करते हैं कि हमें वर्क स्टडी में कहाँ फोकस करना है, और वर्क स्टडी के एनालिसिस के बेसिस पे हम इन टेक्निक्स को एस्टैब्लिश करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट इज फंक्शनल फॉरमैनशिप. Functional foremanship is what? Basically, in the factory system, the foreman represents the managerial figure, because foreman is at factory level, the foreman is the topmost person. So foreman represents the managerial figure with whom the workers has face to face interaction on daily basis. Workers have direct contact with foreman. Okay, so हम कह सकते हैं कि foreman is whom, he is the pivot around whom revolves the entire production planning, the implementation and the control. पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस का कंट्रोल, उसका इम्प्लीमेंटेशन सब foreman पे बेस्ड है. तो अगर हमें प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, हमें उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, तो हमें foreman की डेवलपमेंट पे, उसकी ग्रूमिंग पे वर्क करना पड़ेगा. फाइन. तो फॉरमैन, फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या कहता है? वो ये कहता है कि एक फॉरमैन को बहुत सारे काम करने हैं. अ फॉरमैन मस्ट हैव इंटेलिजेंस, द एनर्जी, ऑनेस्टी, टैक्ट, ग्रिट, जजमेंट, स्पेशल नॉलेज, टेक्निकल मास्टरी, गुड हेल्थ, मैनुअल डेक्स्टेरिटी. दीज ऑल आर द qualities which a foreman must have. But can it be possible that one man possesses all the qualities? क्या ऐसा possible है? One man army,
एक पर्सन में सारी क्वालिटीज़ हों, आई डोंट थिंक फॉर अ नॉर्मल पर्सन दिस वुड बी वेरी इजी. हमें हर पर्सन की एक अलग स्पेशलाइजेशन होता है. एवरी पर्सन पोसेस अ स्पेशल डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशल स्किल्स. तो फंक्शनल फॉरमैनशिप यही कहता है कि एक फॉरमैन सारी स्पेशलिटीज़ नहीं ले सकता. सो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी देयर. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फंक्शनल फॉरमैनशिप इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन. फाइन. तो फंक्शनल फॉरमैनशिप कैटेगराइजेज ऑल द वर्क by separating planning and execution functions. Means we categorize all the work in planning and execution function, which is called functional foremanship. So here this is a factory manager is divided in two parts, the planning in charge and the production in charge. Then planning in charge is further categorized in four parts, instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk and disciplinarian. Further, production in charge is categorized in four parts, speed boss, gang boss, repair boss and inspector. So what we can say that factory manager is categorized in four parts and this 8 foreman gives instructions to workmen. So a worker is getting instructions from 8 supervisors. Okay. So now we study each and every supervisor separately. Like planning in charge. Planning is what is to be think in advance for future. So planning in charge में first हमारे पास है instruction card clerk. As its name suggests, the clerk who is giving instructions to the workers. So the instruction card clerk as of the planning in charge just draft all the instructions which should be given to all the workers. So instruction card clerk just frame, just draft the instructions. Fine. Then route clerk decides the various steps, different steps of production, that how production process will be going on. कोई भी आइटम जब प्रोड्यूस होती है तो वो प्रोडक्शन करने के लिए ऐसा नहीं होता कि हम एक वन शॉट में प्रोडक्शन हो जाती है. हमारा कोई भी आइटम जब प्रोड्यूस होता है तो उसके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं. वो डिफरेंट प्रोसेस में विच प्रोसेस विल कम फर्स्ट, विच प्रोसेस विल सेकेंड, विच विल बी थर्ड. तो क्या रूट रहेगा एक प्रोडक्शन प्रोसेस में, उस रूट को डिसाइड करना, उस रूट को फाइनलाइज करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूट क्लर्क. देन हाउ मच टाइम अ प्रोसेस शुड टेकन, द रूट विच इज़ डिसाइडेड बाय द रूट क्लर्क. So at every route, what will be the estimated time, what will be the standard time should be taken and what will be the cost of each process, that is decided by time and cost clerk. तो ये लोग ये डिसाइड कर देते हैं कि एक प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा और पूरी टास्क में कितना टाइम लगेगा, एक प्रोसेस की कॉस्ट में कितना टाइम लगेगा और पूरे प्रोसेस में, सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा. So time and cost clerk decides that how much estimated time, how much standard time should be taken by a process which is decided by root clerk. The fourth is disciplinarian, who ensures discipline. क्या प्लानिंग के ये सभी काम ऑन टाइम चल रहे हैं? It ensures discipline is going on in the factory or not? Are the planning function is to be done in the manner which has been decided? ऐसा तो नहीं कि हमने सोचा कुछ और था और चल कुछ और रहा है. हमने सोचा था हमारे टारगेट्स ये रहेंगे और हमारा इंस्ट्रक्शन, रूट, टाइम, कॉस्ट सब
डिफरेंट चल रहे हैं, तो टू बाइंड देम इन अन कोऑर्डिनेटेड मैनर इज द ड्यूटी ऑफ डिसिप्लिनेरियन. ओके, देन प्रोडक्शन इंचार्ज, वही 4 आते हैं इसमें भी सुपरवाइज़र. स्पीड बॉस, स्पीड बॉस क्या डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है कि अ जॉब शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड एक्यूरेट. हमारे प्लानिंग में टाइम क्लर्क ने डिसाइड किया था कि कितना टाइम लगना चाहिए, तो क्या एज द टाइम डिसाइडेड बाय टाइम क्लर्क इज बीइंग फॉलोड और नॉट, that is to be checked by speed boss. So these all are related to each other. Okay, then second is gang boss. हमारे पास ये सब मटेरियल होता है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मशीन होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं. सो गैंग बॉस कीपिंग ऑल द machines and tools and material ready at one place, gang it up. गैंग इट अप मीन्स गैंग बॉस ने क्या किया, एक वर्कर को कौन सी मशीन चाहिए, उसको क्या क्या मटेरियल चाहिए, वो सब उसे वहाँ पे रेडी मिल गया. तो इससे क्या होगा, उसका टाइम सेव हो जाएगा और उस वर्कर को काम करने में दिक्कत भी नहीं आएगी, बिकॉज एवरीथिंग इज़ रेडी. तो अगर आप कोई काम करने जाओ और आपको अपने काम करने से रिलेटेड सारी चीज़ें एक जगह असेंबल्ड होके मिल जाएं, यू बिकम हैप्पी. ओह वाओ, नाउ आई कैन परफॉर्म माई वर्क वेरी वेल. और वहीं आपको कोई, कभी आपको पढ़ते समय पेन नहीं मिले, कभी आपको पेंसिल नहीं मिले, तो क्या होगा, आपका मन ही नहीं करेगा. तो फर्स्ट, दिस इज एप्लीकेबल टू योर स्टडी ऑल्सो. फर्स्ट collect all the study material, book, register at one place, then start studying. You will enjoy your study. Okay, next is repair boss. Gang boss ने तो collect करके रख दिया, but are they functioning properly? Are they working properly? So to ensure that all the working conditions of machines are going well, that is the duty of repair boss. And again, are all the bosses are doing work in a coordinated manner? This is the duty of inspector. Fine. Now the standardization and simplification of work. This is the second technique given by Taylor. Basically ये टेक्निक हमारी काफ़ी सारी थ्योरीज पे डिपेंड करती है, लाइक री इंजीनियरिंग थ्योरी, केजन थ्योरी, बेंचमार्किंग थ्योरी. ये सब थ्योरीज हम लोग डिफरेंट सेशन में कवर करेंगे सेपरेटली, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे. बट अभी हम बात करेंगे कि जो भी हमारी कंटेम्प्रेरी टेक्निक्स थी इन बिजनेस प्रोसेसेस की, इन सब के बेसिस पे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क हुआ. एंड ये सभी थ्योरीज प्लस स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन आर ऑप्ट बाय द मेजर कॉर्पोरेट पर्सनैलिटीज़. Microsoft, Toyota, Nokia, they all are adopting these techniques. So actually what is standardization? Standardization of work means the maximization of output through the use of standard equipment, methods and processes. हमने standardization किया हर process का, so that uniformity can be maintained, so that the efficiency can be calculated. Fine. So standardization means to set standards. Standardization refers to the process of setting standards for every business. हम standardization किसी भी context में कर सकते हैं, like standardization of process, standardization of raw material, standardization of time, product, machinery, standardization of different methods to be opt, and the standardization of working conditions. Basically क्या है, ये जो standardization है ये benchmark बन जाते हैं. Every employee has to follow these standardizations. Fine. तो हम क्यों कर रहे हैं standardization? ज़रूरत क्या है? मैंने आपको बताया ना, ज़रूरत ये है कि हमारा comparability ईजी हो जाती है. हम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी प्रोडक्ट्स में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो जाती है. फाइन.
हमारे स्टैंडर्डाइजेशन से क्वालिटी आती है, बिकॉज हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए। हम अपने मशीन्स की, हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज की जो भी परफॉर्मेंस है, वी कैन एनालाइज, वी कैन इवैल्यूएट द स्टैंडर्ड्स, we can evaluate the performance of our human and machine resources on the basis of standards fixed up by the organization. So these are the basic advantages, basic objectives for standardization. Next is simplification. As its name suggests, simplification means what? To simplify a job means to eliminate all the superfluous varieties, sizes and dimensions. Anything which is not required should be eliminated. Basically, simplification का aim क्या है? It aims at eliminating unnecessary diversity of products. आपके जो products हैं वो unified manner में targeted production के लिए work करें. आपकी जो cost of labor है वो save हो. That should not be using in any unnecessary motions. So it results in saving of cost and labor, machine and tools. आपकी unnecessary inventory को होने से save करती है, आपके equipments को पूरी तरह से utilize करती है. So what we can say that simplification helps to efficient, effective and optimum utilization of all the resources available in the organization. नेक्स्ट मेथड स्टडी. हमने पहले भी किया था, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको टेलर के बारे में बताया कि टेलर का एक बिलीव था कि देर आर सो मेनी वेज टू डू अ टास्क बट टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे टू परफॉर्म दैट टास्क शुड बी देयर. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर. सो मेथड स्टडी क्या कहती है? मेथड स्टडी कहती है कि basically to find out one best way of doing the job. What is the one best way? To determine the best way, there are several parameters out of it. Determine just one best way. And this is not for production. ऐसा नहीं है कि हमें production का करना है. हमारा whole production process like right from the procurement of raw material till the final product is delivered. हमें हर स्टेप पे देखना है कि इस काम को करने का बेस्ट वे क्या है. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी भी मेथड को रैंडमली फॉलो करना स्टार्ट कर दें. और इसी की वजह से हमारे पास जैसे फोर्ड है, फोर्ड ने भी असेंबली लाइन मेथड को ऑप्ट किया था. क्यों? क्योंकि मेथड स्टडी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट का मिनिमम करना. क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, हम इनके एडिक्वेट प्रोपोर्शनेट से, इनके एडिक्वेट मिक्स से बेटर रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकें. फाइन. सो कोई भी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को हम प्रॉपरली एक मेथड उसका डिसाइड कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड मेथड स्टडी. फाइन. नेक्स्ट इज मोशन स्टडी. मोशन स्टडी कहती है कि कोई भी काम को करने में हमारे पास बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब. सो स्टडी ऑल दैट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड ट्राई टू एलिमिनेट ऑल द अननेसेसरी मूवमेंट्स. फाइन. मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि ये एग्जांपल आपको शो कर रहा है पिक्चर में. एक ये स्टोर रूम है और ये है फैक्ट्री. देयर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन स्टोर रूम एंड फैक्ट्री. whenever a worker needs raw material or any loose tool, they have to go away to this and then come back to this. So this will unnecessary movement. Rather this, the storeroom and factory should be close to each other so that this unnecessary movements can be eliminated. समझिए आप इस बात को कि अगर ये आसपास होंगे तो unnecessary movement हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. इवन
हम आपके रियल लाइफ से इसको एग्जांपल और ले सकते हैं जो आप सब स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आता है। आप लोग पढ़ते हैं सब घर पे बैठ के, आपके जो पढ़ने की जगह है और जो आपकी बुक्स रखने की जगह है वो दोनों सेम होनी चाहिए या अलग अलग? मतलब हम एक रूम में बैठे हैं और एक रूम में हमारी बुक्स हैं। अब क्या होगा, हम पढ़ने बैठे और लगा ओफो ये रजिस्टर नोट्स दूसरे रजिस्टर में थे, आप फिर दूसरे रूम में गए, आपने वहाँ से रजिस्टर उठाया, अब वो रजिस्टर उठा के आया तो आपको कुछ और दिख गया, आप उसमें लग गए। फिर आप टहलते टहलते आए तो प्यास लग गई, बीच में आप फ्रिज की तरफ मुड़ गए, पानी पीने चले गए, फिर आप अपने यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक आए तो बीच में भाई बहन नज़र आ गए, उसको छेड़छाड़ दिया, फिर आए पढ़ने बैठे। रादर इसके आपकी स्टडी टेबल पर ही सारी बुक्स होती तो आपको जब जो चाहिए आपने इमीडिएटली निकाला और देखा, तो वो जो अननेसेसरी मूवमेंट था वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, समझे? तो इस तरह से जनरली देखा होगा मम्मा लोगों को कि फ्रिज जो है वो कोशिश करते हैं या तो किचन में रखें या बिल्कुल किचन के बाहर रखें। कभी भी किसी के घर में फ्रिज आपके किचन से बहुत दूर नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्रिज जब किचन में काम करते हैं तो फ्रिज की ज़रूरत कई बार पड़ती है। तो ऑल द टाइम, ऑल द वे, द अननेसेसरी मूवमेंट शुड बी एलिमिनेट टू गो फ्रॉम किचन टू फ्रिज, फ्रिज टू किचन। ओके, सो आप अपने आसपास भी इन स्टडीज़ को देख सकते हैं। सो these are the variety of body movements. Some body movements are productive, some body movements are unproductive and some are incidental. कोई भी ऐसा मूवमेंट जो आपकी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है दैट इज़ गुड, बट ये जो हमने बताया ना रूम तक जाना और आना ये अनप्रोडक्टिव था, लेबर का वहाँ से जाना और आना अनप्रोडक्टिव था। सम आर इंसिडेंटल। इंसिडेंटल मतलब जैसे कि वो तो आपके लिए ज़रूरी है, वो प्रोडक्टिव नहीं है। प्रोडक्टिव इज़ व्हेन यू आर डूइंग प्रोडक्शन, बट स्टोर तक जाना वो तो ज़रूरी है। अब मैंने बताया ना पहले वाले एग्जांपल में भी कि इतना तो ज़रूरी है कि आप अपने चेयर से उठोगे और अलमीरा से बुक निकालोगे और फिर वापस बैठ जाओगे अपनी सीट पर। इट विल टेक सम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बट इट विल टेक, एंड दैट आर इंसिडेंटल, दैट आर नॉट अननेसेसरी। ओके, इन द सेम मैनर हाउ दीज कैन बी यूज्ड। तो हमारे वेरियस टूल्स यूज़ होते हैं ये चेक करने में कि कौन से मोशंस नेसेसरी हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से अननेसेसरी हैं, विच आर प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, इंसिडेंटल। सो टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स देर आर सो मैनी टूल्स लाइक स्टॉप वॉचेस, कलर। हम अलग अलग कैटेगरीज़ की एक्टिविटीज़ को अलग अलग कलर से या अलग अलग सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। देन वी कैन एलिमिनेट दैट दीज कलर्स शुड बी एलिमिनेटेड। ओके, सो नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या हुआ कि फॉर completion of every task there must be a standard time, there must be a standard time to be taken to perform a well defined job. Fine, उससे क्या होता है, हम एक efficient and non efficient worker में choose कर सकते हैं। but time study में there are so many factors which should be considered, like volume of task, आपको कितना quantity में output करना है, frequency of task, how many times you have to perform a task, the cycle time of operation. By what is the cycle time? Cycle time of operation means from the procurement of raw material to the finished goods, what is the total time taken to complete a task. Then time measurement cost. Time measurement cost is that how much time, how much cost is to be incurred to measure this time study. These are the factors, because अगर टाइम स्टडी से हम कुछ कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं बट उसको मेजर करने में ही हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग गई तो व्हाट इज़ द पॉइंट? सो टाइम मेजरमेंट कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. देन व्हाई वी डू टाइम स्टडी? टू डिटरमिन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, means to accomplish a task how much workers are needed to be employed, or on that basis the labor cost can be determined.
on the basis of time study, the incentive schemes can be framed, various incentive schemes, because if we set a time, then any worker if takes more time than standard and any worker who takes less time than standard, तो दोनों में हमें efficient and non efficient worker का distinguish हो जाता है. तो the worker who is taking more time as determined in the standard should be punished, and the worker who is taking less time than standard, that should be awarded. Look at example how we fix up a time. Suppose एक box बनाने में 20 minutes are taken. So in the 1 hour 3 boxes will be prepared. तो अब हम एक वर्कर के लिए स्टैंडर्ड एक फिक्स कर सकते हैं. कैसे? टोटल 8 वर्किंग आवर्स होते हैं. आउट ऑफ इट 1 hour फॉर रेस्ट फॉर द वेरियस इंटरवल्स आर टू बी डिडक्टेड. द टोटल 7 net working hours are there. If in 1 hour 3 boxes are prepared, then in 7 hours 21 boxes will be prepared. So there will be a standard set for a worker that in 1 day a worker must prepare 21 boxes. If any worker prepare less boxes or any worker prepares more boxes, then the wages should be given to the respective worker accordingly. And इसको अभी हम लोग स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट टेक्निक में, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम में, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो हमारी ये 4 वर्क स्टडी टेक्निक्स हैं, दे आर बेसिस ऑफ डिफरेंट नॉन वर्क स्टडी टेक्निक्स. सो जो डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम है, दैट इज बेस्ड ऑन टाइम स्टडी. ओके, देन नेक्स्ट इज फटीग स्टडी. फटीग मीन्स व्हाट? थकान. बहुत सारे रीजंस होते हैं हमारे थकने के. हम पढ़ते पढ़ते थक गए, सब्जेक्ट हमारी पसंद का नहीं है, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी कज़न्स आए हुए हैं, कैसे पढ़ें. तो देर आर सो मैनी रीजंस ऑफ फटीग, मेंटल फटीग एज वेल एज फिजिकल फटीग. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वी टॉक ऑलवेज अबाउट फिजिकल फटीग. फटीग कैन बी एसोसिएटेड विद all the factors. So various postures you do while fatigue. पढ़ते पढ़ते बुक पे सिर रख के सो गए. एक वर्कर काम करते करते वहीं मशीन के पास झपकी लग गई. एक वर्कर गलत काम कर रहा है, वो भी फटीग का आउटकम है. सो फटीग स्टडी में हम करते क्या हैं कि वेरियस रेस्ट इंटरवल्स डिफाइन करते हैं. व्हाट अमाउंट ऑफ रेस्ट इंटरवल्स अ वर्कर नीड, ये डिसाइड करते हैं. तो हम कह सकते हैं लॉन्गर वर्किंग आवर्स, अनसूटेबल वर्क, अनकॉर्डियल रिलेशनशिप्स, बैड वर्किंग कंडीशंस, दे ऑल आर द रीजंस ऑफ फटीग. तो फटीग स्टडी में देखो, एक वर्कर का ये प्रोसेस रहता है डे का. व्हेन अ वर्कर रीच एट वर्क, ही स्टार्ट वर्किंग. आफ्टर सम टाइम अ शॉर्ट इंटरवल इज टेकन, देन ही रिज्यूम वर्क, देन लंच ब्रेक. That will be for longer term as compared to this short interval. Then again worker resumes work, then he take a short interval, then resume work, and then end of the working day. तो हम ये कह सकते हैं कि fatigue study seeks to determine the amount and frequency. ये जो हमारे short interval, lunch and short interval है, इनका amount कितना होगा और इनके बीच में ये gap कितना कितना होगा. That is to be determined through fatigue study. Fine. So the rest intervals will help one worker to regain stamina and work again with the same capacity. कोई भी काम के बाद आप जब एक नैप ले लेते हैं, आप एक रेस्ट ले लेते हैं, तो उसके बाद आपका स्टैमिना रीगेन हो जाता है. एंड बिकॉज आफ्टर सम टाइम अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एज वेल एज मेंटली. अगर वो रेस्ट नहीं करेगा तो रेस्ट इंटरवल्स हेल्प्स अ वर्कर टू रीगेन ऑल द स्टैमिना एंड कैपेसिटी टू वर्क अगेन. नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. जैसा कि मैंने आपको टाइम स्टडी में बताया कि
On the basis of time study, we fix up the standard. So, Taylor always wanted to differentiate between efficient and inefficient worker. So, the standard time and other parameters should be determined on the basis of work study. जितनी भी हमने वर्क स्टडीज़ अभी की हैं उन सब के बेसिस पर हमें स्टैंडर्ड्स फिक्स अप करने हैं, सो दैट वर्कर्स कैन बी डिवाइडेड बिटवीन एफिशिएंट एंड नॉन एफिशिएंट वर्कर. ओके, अब एक एग्जांपल जैसे हम यहाँ ले रहे हैं कि मान लो स्टैंडर्ड आउटपुट 10 यूनिट्स फिक्स हो गया, अब रेट फिक्स हो गया. द वर्कर हु अचीव more than the standard will get ₹50 per unit, and the worker who achieve below the standard, that worker will receive 40 per unit. हमारे पास दो वर्कर हैं, एक वर्कर ने 11 यूनिट्स प्रोड्यूस की और एक दूसरे वर्कर ने 9 यूनिट्स. सो द फर्स्ट वर्कर विल गेट 11 into 50, 550 rupees in a day, and the another worker will get 9 into 40, 360 rupees per day. तो ये जो डिफरेंस आ गया हमारे पास 190 रुपीज़ का, दैट डिफरेंस ऑफ 190 रुपीज़ शुड बी इनफ फॉर द इनएफिशिएंट वर्कर टू बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर. सो बाय दिस नाउ we are concluding all the techniques and principles of Taylor. Now connect with us for more Fayol's principles of management and go through all the content which we covered. In case of any query, you can mail me at rajshritutorials@gmail.com, and you can put your any query in the comment box. Wish you a very good luck and thank you so much.